Good morning, students. In the last class, we have studied about approach and method of teaching English. And in this lecture, we will be discussing about grammar cum translation method of teaching of English. If we see the history of grammar cum translation method, this method is considered as the oldest method. This is considered as the oldest method. As you can see, this is the oldest method. And why this is called the oldest method? Because earlier to learn Greek and Latin language as a second language, this method was to be used, and that is why this method is called the traditional method, because Greek and Latin languages are the traditional languages. So that is why grammar cum translation method is the classical method, as well as it is also the traditional method, right? Now, if we define grammar cum translation method, we can see that this method is used to learn any foreign language or any second language. As we all know that the students are familiar with their native language, but when the student is supposed to learn a second language, then this is the method in which grammar and translation is used as the main techniques and main devices to learn this second language. Suppose you know Hindi and you want to learn English, and in that case, you can learn English by using grammar and translation as the most important keywords, like most important aspect, right? So, where grammar cum translation method has three important things. Like first is the grammatical rules. Like if we want to learn English, then we here the teacher uses the grammar as the basic component of teaching English to the student. That means the deductive method of grammar cum translation method grammar is used to teach. Like in this method, grammar is taught deductively. That means deliberate efforts are done by the teacher to teach grammatical rules. And the second thing is the target language is need to be considered. That means we need to see in which language we want to make the students learn. Like for example, Hindi is our native language, and if we want to learn English, then English will be considered as the target language. And third thing is the translation. That means the teacher has to make the exercises, and she has to deliver the content in a translated form. Like the student know their native language, and the teacher translates the English content in Hindi, and it not only make the student understand what is written in the second language or the target language, by the same time it also helps them, it also facilitate them to learn the second language very easily with the help of their native language, right? So objectives of teaching grammar cum translation method is, the first is the to make the students understand the literature of the target language. Here you can see they would be able to read literature which is written in the target language. That means because the more and more practice of the vocabulary item is done here, so the students get good command over the vocabulary, and they can easily translate what has been written in the second language or the target language. Second thing is that to be able to translate from one language to another, it is not only that the student learn to translate the second concept, target content into their native. Parallelly, they can also translate the native language literature into the target language. And the third is they are able to develop their reading and writing skill. सो उनकी रीडिंग एंड राइटिंग जो स्किल है वो भी डेवलप हो जाती है. अब यहाँ हम बात करते हैं कि जो हमारे स्किल्स हैं वो कौन से स्किल्स हैं. जब हम लैंग्वेज लर्निंग की बात करते हैं तो 4 स्किल्स हैं जिनको हम कंसीडर करते हैं. तो वो 4 स्किल्स कौन से हैं ये देख लीजिए कि यहाँ पर हमारे 4 स्किल हैं. एक है रीडिंग, दूसरा है राइटिंग, फिर लिसनिंग और फिर है स्पीकिंग. दैट मीन्स रीडिंग एंड राइटिंग
Here you can see that reading and writing is coming first and listening and speaking are coming later. That means what? That means in this method reading and writing are given importance and listening and speaking skill are given very less importance, right? So here the student is able to read the literature in the target language, and second is they are able to write whatever has been they have read, they can write it. So parallelly these two skills are developed in this method. But remember, very little attention, no attention is paid on listening and speaking aspect, right? So this is the drawback, because when we talk about learning a second language, learning any language, listening comes first and then speaking, then reading and then writing. You can easily observe that when you learn Hindi language, you start a baby which is born, how he learns a language. Gradually he listen to the sounds of the native speakers, then he listen to those sounds, he listen with the understanding, and then gradually he starts speaking. And when he take admission in the school, then only he learns to read and write Hindi language. So but here it is not there. Here this method suggests that the student also knows, already knows their native language. So native language can be helped to learn target language. So reading and writing should be taken up first, and then listening and speaking can be taken later, right? Next is next. Let us move to the next slide. Yes, this is application in the classroom. Suppose that means if ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड कहता है कि हिंदी लैंग्वेज को यूज करिए इंग्लिश पढ़ाने में, तो हम हिंदी का कैसे कैसे यूज कर सकते हैं इंग्लिश पढ़ाने में? देखिए, सबसे पहले है इसका यूज क्या है, फायदा क्या है। पहला है ट्रांसलेशन ऑफ अ लिटरेरी पैसेज, यानी स्टूडेंट के पास अगर कुछ टारगेट लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो अगर हमें कभी ट्रांसलेशन कराना है तो ये मेथड बच्चे का यूज होता है, अगर उसने इस मेथड से पढ़ाई की है तो। दूसरा है, कुछ भी अगर लिखा हुआ है, बच्चा पैसेज लिखा हुआ है टारगेट लैंग्वेज में, बच्चा उसको बहुत अच्छे से समझ पाता है, क्योंकि उसको वर्ड मीनिंग्स कई सारे आते हैं, उसको वर्ड मीनिंग रटवाए जाते हैं नेटिव और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो उसको जो है डिफरेंट कॉम्प्रिहेंशंस को वो बहुत अच्छे से समझ सकता है, और उसको रीडिंग और राइटिंग बहुत अच्छे से कर सकता है। दूसरा है, अगर हमें ग्रामर जो है डिडक्टिवली पढ़ाना है तो ये मेथड ठीक है, क्योंकि इस मेथड में डिडक्टिव अप्रोच से ही ग्रामर के रूल्स को पढ़ाया जाता है। यानी पहले रूल्स बताए जाते हैं, उसके बाद बच्चा एग्जाम्पल्स को सीखता है। जैसे कि अगर मुझे नाउन पढ़ाना है तो नाउन पहले समझाया जाएगा, फिर बच्चे को एग्जाम्पल्स दिखा दिए जाएंगे, और बाद में बच्चे से कहा जाएगा कि वो अपने एग्जाम्पल्स दे। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, अगर होते हैं तो भी बच्चा फिल इन द ब्लैंक तभी कर सकता है जबकि उसको इस सेंटेंस का मीनिंग समझ में आ रहा है, और ग्रामर कम ट्रांसलेशन में बच्चा लिटररी मीनिंग को अच्छे से समझ पाता है। अगर हमें कुछ मेमोराइजेशन कराना है तो मेमोराइजेशन के लिए भी ये मेथड हेल्पफुल है। नेक्स्ट है कॉम्पोजिशन के लिए भी, अगर बच्चे को कुछ अपना कॉम्पोजिशन लिखना है, कॉम्पोजिशन मतलब उसका पीस ऑफ राइटिंग, इंग्लिश है, हिंदी है, में एसेज है, तो वो उसको कर सकता है। और अगर उसको क्योंकि यहाँ मैंने बताया वर्ड्स जो है काफ़ी रटवाए जाते हैं वर्ड मीनिंग, तो यहाँ वर्ड मीनिंग को वो अपने सेंटेंसेस में अगर हमें यूज कराना है तो वही बच्चा यूज कर सकता है जिसको वर्ड मीनिंग्स याद हो। और ये मेथड कहता है कि बच्चों को पहले वर्ड मीनिंग याद करवाइए। नेक्स्ट आता है एंटोनिम एंड सिनोनिम, यानी बच्चा जो है एंटोनिम और सिनोनिम्स जो है इनका यूज भी कर सकता है। अगर हमें बच्चे को इंटोनिम सिनोनिम पढ़ाना है तो इंटोनिम सिनोनिम पढ़ाने के लिए इस मेथड का यूज किया जा सकता है। इसके क्या एडवांटेजेस है? ये है कि ये सबसे इजीएस्ट है और सबसे शॉर्टेस्ट वे है, यानी बहुत इजीली टीचर को भी कोई बहुत मेहनत नहीं करनी है, और बहुत आराम से नेटिव लैंग्वेज का यूज करके
जो है क्लास में पढ़ाया जा सकता है, डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स को एक्सप्लेन किया जा सकता है, बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत टीचिंग एड वगैरह का यूज़ नहीं है। दूसरा है बच्चों को भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है, द स्टूडेंट्स हैव नो डिफ़िकल्टी क्योंकि उनकी लैंग्वेज का यूज़ हो रहा होता है, मदर टंग यूज़ हो रही होती है। दूसरा है लेबर सेविंग मेथड है, इसमें टीचर को कोई टीचिंग एड नहीं बनाना, हिंदी लैंग्वेज में पढ़ाना है तो बहुत कम मेहनत लगती है। नेक्स्ट आता है कि टीचर इसको आसानी से क्लास में यूज़ कर सकते हैं एंड टीचर को ज़रूरी नहीं है कि उनकी स्पीकिंग बहुत अच्छी हो वही टीचर इस मेथड से पढ़ा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदी वाला टीचर भी इंग्लिश को पढ़ा सकता है। दूसरा ये है इसमें केवल टेक्स्ट बुक जो है एक एज अ टीचिंग मटेरियल यूज़ होता है, बहुत कोई टीचिंग मटेरियल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें स्टूडेंट और टीचर दोनों ही कम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं क्योंकि उनको स्ट्रेस नहीं होता है, वो आसानी से पढ़ना और लिखना पॉसिबल हो पाता है क्योंकि उनकी हिंदी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। दूसरा ये है कि स्टूडेंट जो है उनको ज़रूरत नहीं होती है कि वो जो है इंग्लिश स्पीकर के वर्ड्स को ही सुने तभी वो समझ पाएंगे, राइट। तो नेटिव स्पीकर्स के कांटेक्ट में आने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं इस मेथड के। सबसे पहली बात है कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो केवल लिमिटेड ऑब्जेक्टिव्स ही पूरे किए जा रहे हैं। लैंग्वेज लर्निंग के 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग स्किल को डेवलप करना, लेकिन यहाँ पर केवल रीडिंग एंड राइटिंग स्किल जो है उन्हीं को ही फोकस किया जाता है, बाकी 2 स्किल को छोड़ दिया जाता है। दूसरा है ये एक अननेचुरल मेथड है, इसलिए अननेचुरल मेथड है क्योंकि नेचुरल मेथड तो हम सभी जानते हैं, अगर हमें हिंदी सीखनी है तो हम पहले सुनते हैं, फिर बोलना सीखते हैं, फिर लिखना और पढ़ना सीखते हैं। जब इसीलिए इस मेथड को हम अननेचुरल मेथड कहते हैं क्योंकि यहाँ हम सुनना और बोलना तो सीखते ही नहीं हैं, हम सिर्फ लिखना और पढ़ना ही सीखते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें स्पीकिंग और लिसनिंग को पूरी तरह निग्लेक्ट किया गया है, कोई एक्सरसाइज कोई ड्रिल लिसनिंग स्पीकिंग की नहीं होती है, केवल ट्रांसलेशन पे ही फोकस किया जाता है। और यहाँ पर कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है कि एग्जैक्ट ट्रांसलेशन यानी लिटरल ट्रांसलेशन हर वर्ड का पॉसिबल नहीं भी होता है। जैसे हम कहें कि प्रोवर्ब्स कई ऐसे होते हैं, कई इडियम्स ऐसे होते हैं जिनका जैसे लाइक फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं ही वाज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, तो बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून का मतलब अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो कोई और कुछ और होता है, लेकिन जबकि इसका सेंस होता है कि वो बहुत रिच फैमिली में उसका जन्म हुआ है। नेक्स्ट है तो इसलिए एग्जैक्ट ट्रांसलेशन हर बार पॉसिबल नहीं होता है। नो पैटर्न प्रैक्टिस, किसी भी तरह से कोई भी स्ट्रक्चर या सेंटेंसेस की कोई प्रैक्टिस बच्चों को नहीं कराई जाती है, केवल ट्रांसलेशन, वर्ड मीनिंग को मेमोराइजेशन कराया जाता है, बस केवल बच्चा ट्रांसलेशन से ही पढ़ता है, बच्चा कोई भी प्रैक्टिस नहीं करता है कि वो नए नए सेंटेंसेस फ्रेम कर सके। और कोई भी अटेंशन प्रोनाउंसिएशन पे भी नहीं दी जाती है, प्रोनाउंसिएशन क्योंकि हमारा स्पीकिंग का पार्ट है, लिसनिंग का पार्ट है, तो जब उन दोनों स्किल को इग्नोर किया जाता है तो ऑब्वियसली बात है कि प्रोनाउंसिएशन जो है वो भी इग्नोर हो जाती है। इट्स फोकस इज ऑन एक्यूरेसी नॉट फ्लुएंसी, यस, हम सही से पढ़ पाए और सही से लिख पाए, रीडिंग जो कर रहे हैं वो समझ सकें और जो लिख रहे हैं वो अच्छा बेहतर लिख सके। सुंदर राइटिंग की बात नहीं कर रहे हैं, यूज ऑफ गुड वोकेबलरी आइटम्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं, अच्छे वर्ड्स का यूज करके हम लिख रहे हैं। एंड डज नॉट फॉस्टर द स्टूडेंट्स कम्युनिकेटिव एबिलिटी, ये बिल्कुल सही है कि स्टूडेंट का कम्युनिकेशन स्किल यहाँ डेवलप नहीं होता है टारगेट लैंग्वेज में, यानी जो बच्चे इस मेथड से पढ़े होते हैं, ट्रांसलेशन मेथड से पढ़े होते हैं, वो यूजुअली आपने देखा होगा उनकी कम्युनिकेशन जो है वो अच्छी नहीं हो पाती है। नेक्स्ट आता है आपका वेरी लिटिल और स्टूडेंट टीचर एंड स्टूडेंट इंटरेक्शन, इनका इंटरेक्शन भी नहीं होता है। तो ये है हमारा कि टीचर और स्टूडेंट का बहुत कम इंटरेक्शन होता है, राइट। So this was the reference and next time we'll be covering direct method. Thank you and have a nice day.